I vividly remember the day when I messaged you for the very first time. So during mains, I got to know about Karma Yogi IS via a group of Shubham Ajmera. I used in notes without knowing about. So yes, that was the starting point. And because I found those notes very crisp and ready to use, they were not bulky of 400 pages or 500 pages, and one has to search for the important information. They were just 20 pages or 15 pages and ready to use. So I think that is a brilliant strategy, I must say. And uske baad, your support has been phenomenal, obviously. For the last 5, 6 months, you have been a pillar of strength for me. I remember even on the day of results, I messaged you that, sir, anxious ho nahi ho raha mujhse, and the belief you showed in me, eventually it paid off. So yes, and also I remember the mock interview. My first group mock interview was with Karma Yogi IS only. And it was I should say, आँख खोलने वाला moment था मेरे लिए. First of all, I want to congratulate you because it is nothing less than a personal success for me. जब रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले पीडीएफ खोला और उसमें नाम सर्च किया आपका, ठीक है, प्रीति चौहान, फिर जस्ट सॉ 47 रैंक। तो फिर मैंने तुरंत मैसेज किया बिकॉज from last 2 years now we have been working in tandem for so many things and it is like someone very close to me have succeed in this examination। तो बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को ये देखकर, बिल्कुल ही, कि फाइनली वी डिड इट, जिसके लिए वी वर वर्किंग। तो व्हाट वन मैसेज यू हैव फॉर ऑल द पीपल who are aspiring to clear this examination, since you have not cleared it once, you have cleared it twice now? So one thing is first, start dreaming big. सपने बड़े देखोगे तब जाके पूरे होंगे. Because I am the person who does not have any single government officer in my whole bloodline. Let's leave the group A. I don't have anyone of the group C. But still I dreamt big. I thought, why not me? So first start dreaming big. Because जब सपने बड़े देखोगे तब सपने सच होते हैं. बिल्कुल सही बात है एंड आई कैन वाउच फॉर इट ना, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड ये जो सक्सेस है, ऑन वी आर रिकॉर्डिंग ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड दिस would be a very aspiring inspiring messages for millions of girls जिनके पास, जैसे आपके पास, उतनी सुविधाएं नहीं थी, नॉट हैविंग फैसिलिटीज, बट यस यू हैड अ वेरी सपोर्टिंग फादर, जो आप बार बार बोलते हो कि योर फादर वाज वेरी सपोर्टिंग। सो ऐसे ही ड्रीम्स एस्पायर। मेरे मेरे पास दो तीन क्वेश्चन है। एक तो विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, क्योंकि आपने एक बार नहीं दो बार हम्म, क्लियर किया, यू हैव क्लियर्ड इट ट्वाइस। हम्म. सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? So my strategy was very simple and basic. It was like there were some basic fundamental sources, Lakshmikant, Spectrum, the same sources which everyone follow. I followed the same sources in both of my attempts, nothing new. And then I stuck to those sources. मैंने क्या देखा है, I have received many queries कि मैम ये source से इस पे skip कर ले या ये कर ले. But people don't understand कि इससे नहीं होता है. It just diverts your energy, time and efforts. तो मैंने कोशिश की कि मैं वो गलती अवॉइड करूं. मैं सेम सोर्सेज पे मैंने स्टिक किया पहले तो. उसके बाद आई ट्राई टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, जितना मुझसे हो सके. आज मेरी लक्ष्मीकांत को देख के कोई पहचान नहीं सकता क्या लिखा है, बिकॉज मैंने इतना स्क्रिबल कर दिया उसको, पेन, हाइलाइटर्स, पेंसिल, सब चीजों से. तो आई ट्राई टू रिवाइज इट एज मच एज पॉसिबल. उसके बाद मुझे समझ में आया कि टेस्ट भी देने होते हैं. तो आई रिमेम्बर कि मैंने कहीं पे जागृति अवस्थी हु वाज द एआईआई 2 वंस, तो उनको सुना था कि शी सेड कि आई अटेम्प्टेड सम 60 टेस्ट. तो आई वाज लाइक कि अपने पहले प्रीलिम से पहले कि आई वुड गो आफ्टर अटेम्प्टिंग 70 टेस्ट एटलीस्ट. तो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में भी कि 70 टेस्ट दिए थे, इंक्लूडिंग द एफएलटीज एंड सेक्शनल. तो टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. आपको समझ में आता है कि आपको वो जो एप्टीट्यूड है एमसीक्यू सॉल्व करने का, वो डेवलप होता है आपका. आपको चीजें जो फ्रेमिंग है क्वेश्चंस की, वो समझ में आते हैं यूपीएससी कैसे करती है. तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सिमिलर इंपॉर्टेंस कैन बी गिवन टू द एनालिसिस ऑफ दोस टेस्ट. मैंने ये भी देखा है कि पीपल अटेम्प्ट टेस्ट रिलेंटलेसली, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बट दे डोंट एनालाइज कि हो क्या रहा है एक्चुअल में. क्या वीक एरियाज है, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज है, क्या चीजें सही चल रही हैं, कहाँ आपका थॉट प्रोसेस गलत जा रहा है. हम उसमें टाइम ही नहीं देते, बिकॉज हमें लगता है कि दोज 3 hours एनालिसिस आफ्टर 2 hours टेस्ट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. एंड लेट मी टेल यू, इट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम फॉर द प्रीलिम्स. जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो. सो सर, दीज वर द रिसोर्सेज, मिनिमल रिसोर्सेज, मैक्सिमम प्रैक्टिस.
एंड द मेन थिंग इज कि आपके पास जब आपने लास्ट टाइम यू हैव गिवन द इंटरव्यू, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए देयर वाज नॉट मच टाइम. सो हाउ डिड यू हैंडल द करंट अफेयर्स फॉर द प्रीलिम्स? Yes, sir. Actually, the result was on 22nd April and the prelims was on 24th May only. And उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा एंगेजमेंट था मेरा कि रिजल्ट आ गया है, इधर जाना है उधर जाना है. एंड देन जब सोच लिया कि प्रीलिम्स भी देना है वापस से, तो सर करंट अफेयर्स के लिए मैंने, क्योंकि ईयरली तो नहीं पढ़ पाई थी मैं करंट अफेयर्स, बीच में इंटरव्यू वगैरह आ गया, सब चीजें गैप आ गई थी उसमें, तो मंथली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाई थी उस टाइम पे. तो आई स्टक टू ईयरली कंपाइलेशंस. वहां पे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे थे सिर्फ वो. तो आई मेड श्योर कि एटलीस्ट जो मोटे मोटे मैक्रो टॉपिक्स हैं उनका मुझे बेसिक आइडिया होना चाहिए, चाहे रैंडम टॉपिक्स का ना पता हो. बिकॉज आई थिंक दैट करंट अफेयर्स इज जस्ट लाइक एन ओशन. आप कभी भी उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हो. आप 100 फैक्ट पढ़ लो, यूपीएससी विल आस्क 50 फैक्ट्स अपार्ट फ्रॉम दैट. आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो मैंने मिनिमम टाइम ही दिया करंट अफेयर्स को कि ठीक है, अगर कुछ आएगा तो इसमें से कवर हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर किसी को भी नहीं आएगा, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज रिलेटिव इन नेचर. सो दैट वाज इट. एंड सोशियोलॉजी, बिकॉज योर ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी. एंड इस बार भी अगर मैं हंगर की बात करूं तो शी ज्वाइंड द टेस्ट सीरीज एंड शी रोट ऑल द टेस्ट डिस्पाइट. एक होता है इनर्शिया आ जाता है, यस आई हैव गॉट द रैंक एंड 90% ऑफ द पीपल स्टॉप राइटिंग द टेस्ट एक्सेट्रा, बट शी वाज राइटिंग ना ऑल द टेस्ट, शी वाज राइटिंग ऑन टाइम, सारे कुछ लिखना. तो आपका सोशियोलॉजी की स्ट्रेटजी क्या थी इन जनरल? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग, विद रिस्पेक्ट टू योर रिसोर्सेज एक्सेट्रा? Sir, the reason for hunger in sociology was sociology and essay were those two subjects which stopped me from getting IS in my first attempt. Because I remember that I got low scores in only these two subjects. So that was the reason. And regarding the strategy in sociology, I did not change my resources much in the second attempt. The thing which I did differently in my second attempt was the consolidation of everything. मेरे पहले अटेम्प्ट में क्या था कि मैंने 2-3 रिसोर्सेज से पढ़ा, बट मैं उनको कंसोलिडेट नहीं कर पाई. मुझे उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी कि इतना टाइम मुझे नहीं मिलेगा कि मैं इतने 3 रिसोर्सेज से वापस से पढ़ पाऊंगी. ये बात मुझे समझ में आई पहला अटेम्प्ट देके. तो मुझे याद है कि पहला अटेम्प्ट देने के बाद जो पोस्ट मीन्स फेज होता है आपके पास में 3 महीने का, विच इज फुल ऑफ एंग्जाइटी, आई कंसोलिडेटेड माई नोट्स इन दोज 3 मंथ्स कि अगर वापस देना पड़ा तो अब मैं ज्यादा बेटर तरीके से ऑप्शनल देने वाली हूँ. तो मैंने उन 3 महीने में वो कंसोलिडेट कर लिया था, अपने नोट्स बना लिए थे पेपर 1 पेपर 2, कि गॉड फॉरबिड दोबारा देना पड़ा तो अब अच्छे से दूंगी. ये चीज की थी. एंड सेकेंडली सर, थोड़ा सा एक अप्रोच समझ में आया कि जस्ट आपको सोशियोलॉजिस्ट जो है वो डंप नहीं करने होते हैं आंसर्स के अंदर. यू हैव टू लिंक दो सोशियोलॉजिस्ट विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आपको जो पूछा गया आप वो ना आंसर करके सिर्फ सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिखते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका. एसेंस क्वेश्चन का समझना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है. तो वो सभी चीजें सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा समझ में आई. दो स्कोर्स रिलीज नहीं हुए हैं, बट आई एम होपिंग कि पहले से तो बेटर हुआ होगा. डेफिनेटली हुआ होगा. और विद रिस्पेक्ट टू ऐसे ना, मैंने देखा आपने बहुत सारे टेस्ट लिखे, यू ट्राई टू इनकलकेट थिंग्स. एक बहुत ज्यादा मतलब मिसनोमर है कि ऐसे की प्रिपरेशन कैन नॉट बी डन एंड इट्स वेरी वेग. तो व्हाट वाज योर जनरल स्ट्रेटजी? So, the same thing was with the essay. Essay was the one which pulled me down, having 88 score, which was below average. तो पहले तो कॉन्फिडेंस ही शटर हो गया. मुझे लगता था मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, बट यूपीएससी प्रूव्ड मी रॉन्ग कि नहीं, ऐसा नहीं है. पहला तो अपनी जो मिस्टेक्स है उनको एनालाइज किया. मुझे समझ में आया कि ठीक है, द पैराग्राफ्स व्हिच आई एम राइटिंग इन एसे दे आर नॉट बीइंग लिंक्ड. मैं अपने थॉट्स डाल रही हूँ बट वो उतने अच्छे से निखर के नहीं आ रहे हैं पेपर पे. तो मैं इंटरलिंकिंग अच्छे से नहीं कर रही हूँ. मेरे जो दोनों एसेज है वो थोड़े मोनोटोनस लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं. उनका इंट्रोडक्शन आप डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकते हो. आपका कंक्लूजन कैसे इंट्रोडक्शन के साथ में लूप में क्लोज करना होता है. तो दीज वर सम थिंग्स जो मैंने सेकंड एसे में इनकलकेट किया. अगेन मार्क्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं, बट हाँ, आई एम होपिंग कि ये सब चीजें काम की हैं वापस से मेरे लिए. एंड बहुत सारी मतलब न्यूज रहती है विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग द नोट्स ऑफ मेंस. तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? वाज यू मेकिंग वन पेजर नोट्स और व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज के लिए? सर, इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट बिफोर प्रीलिम्स, जब मुझे मेंस का कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने मेंस के बहुत मोटे मोटे नोट्स बना लिए थे. बिकॉज जस्ट एंड फोमो, मुझे पता ही नहीं था कि इतना कंटेंट चाहिए ही नहीं. यू हैव टू जस्ट राइट अ 10 और 15 मार्कर आंसर इन जीएस, दैट टू इन 2 और 3 पेजेस. उससे ज्यादा कंटेंट की आपको नीड ही नहीं है. ना आप रिवाइज कर पाओगे ना आप याद कर पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है उसका. बट वो तब समझ ही नहीं आया. बाद में इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने मेंस के लिए पढ़ाई करनी स्टार्ट की, मैं कॉन्कर मेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, एंड मैंने फिर से स्टडीज अपनी अच्छे से स्टार्ट की.
तो फिर मैंने ये किया कि मैंने जो भी टॉपिक सिलेबस के अंदर है उसके बारे में एटलीस्ट मुझे 1 पेजर 2 पेजर उतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर मेरे सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, फिगर्स आ जाएंगे, जो भी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के वो आ जाएंगे, कोई नया कहीं अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस हो रही है, कोई रोल मॉडल है, वो सब आ जाएगा। सारा कंटेंट मेरा उसी में आ जाएगा। अब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए उस टॉपिक में, आई एम गोइंग टू यूज दिस सेम कंटेंट। तो वो जो कंटेंट का यूज होता है अक्रॉस द पेपर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कम चीजें याद करनी है बट उसे ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करना है। दैट्स द Yes. बज़वर्ड। और Yes. इंटरव्यू के लिए, बिकॉज आई हैव टेकन योर मॉक इंटरव्यू, यू वर ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट, सो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। व्हाट इज द रेसिपी फॉर इट, बीइंग सो कॉन्फिडेंट इन द पर्सनैलिटी टेस्ट? So you are saying I'm confident. I believe I'm very underconfident. ठीक है, ओके। सो ऐसा था कि जो पहला इंटरव्यू था उसमें द फर्स्ट मॉक इंटरव्यू विच आई गेव वाज ऑफ कर्मयोगी आईएएस ओनली, जो मैंने ऑनलाइन दिया था। एंड दैट वाज एन आई ओपनर, क्योंकि मुझे इतने सारे क्रिटिसिज्म मिले, थोड़ा रियलिटी चेक मिला कि ठीक है अभी भी बहुत कुछ सीखना है, मैं यहाँ पे इन एरियाज में लैग कर रही हूँ, ऐसे करना है वैसे करना है। तो वो थोड़ा समझ में आया कि अच्छा अभी भी बहुत सारी प्रिपरेशन बाकी है। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में तो सर टाइम ही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू ही मेरा 12 दिसंबर को था। सो कोई मॉक देने का भी टाइम नहीं था। कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आई हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू इन बोथ ऑफ माई अटेम्प्ट, इनिशियल अटेम्प्ट, तो नॉलेज से ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं जो बात कह रही हूँ उसका मुझे कन्विक्शन है, उस पर मुझे विश्वास है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जस्ट सुपरफिशियल फैक्ट्स बता रही हूँ, कन्विक्शन के साथ मैं वो बात बोल रही हूँ, कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, ना कि क्वेश्चन आंसर जवाब दे रही हूँ सिर्फ। खुद के बारे में अच्छे से जान रही हूँ, अपने डैफ को प्रिपेयर कर रही हूँ अच्छे से। तो यही सब चीजें होती हैं। आपका मैसेज क्या होगा ना फॉर पीपल हु कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, दे आर नॉट हैविंग दैट मच मनी फॉर hefty कोचिंग फीस, उनको लगता है, दे फील दैट दे कैन नॉट क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तो व्हाट इज दैट वन मैसेज फॉर दोज कैंडिडेट्स? इवन आई यूज टू थिंक लाइक दिस ओनली, जब मुझे चीजें पता नहीं थी। आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं तो दिल्ली नहीं जा पाऊंगी, इतने वहां अच्छे मेंटोर्स हैं, फैकल्टीज हैं, वो सब मुझे नहीं मिलेगा तो हाउ वुड आई बी एबल टू डू इट। ये सब चीजें लगती थी। बट अब आई थिंक कि इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन, इफ यू आर रेडी टू डिवोट योर 10 to 12 hours consistently to your study, then you can do it. Then you can surely do it. There is no bar. There is no bar of any language, any background. कुछ भी बार नहीं है, लिटरली कुछ भी बार नहीं है। आपको हर चीज का एग्जाम्पल मिल जाएगा लिस्ट के अंदर। आपको हिंदी मीडियम वाले भी मिलेंगे, आपको रूरल बैकग्राउंड वाले भी मिलेंगे, आपको ट्राइबल बैकग्राउंड वाले भी मिलेंगे। हर जगह का इंसान आपको मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि बैकग्राउंड कभी भी एक्सक्यूज होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ रिसोर्सेज कम पड़ सकते हैं, बट देन अगेन वो सर्कमस्टांसेस ही आपको शेप करते हैं। मेक दो circumstances the fire within you and you will succeed. मैंने कर लिया तो everyone can do it. As simple as that. And what do you want to say about Karmyogi IS and your relationship? So my relationship has been a long one from my first attempt only. I was associated since my first interview. So जैसे मैंने बताया, my first mock interview was with कर्मयोगी आईएएस only, the eye opener one. सबसे बात की समझ में आया कि बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी तो। And also your personal support, your personalized mentorship regarding sociology, especially in my second attempt. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी सोशियोलॉजी के लेकर। बट देन यू एनालाइज्ड ईच ऑफ माय कॉपीज, गिव डिटेल्ड कमेंट्स कि ठीक है ये चीज अच्छी है, इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज वैसे करनी है। दैट हेल्प्ड मी इमेंसली। एंड सबसे अच्छा ना, इट हेल्प्ड मी कल्टिवेटिंग द कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि ठीक है आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आई कैन क्रैक दिस। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड उसके बाद में दी मॉडल आंसर्स यू प्रोवाइडेड फॉर द सोशियोलॉजी, दे वर इनक्रेडिबली गोल्ड। वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। मतलब इतने सारे सोशियोलॉजिस्ट, एवरीथिंग, मतलब कंटेंट बहुत अच्छा था वो। एंड ऑल्सो दी करंट अफेयर्स, मैंने वो करंट अफेयर्स पढ़े थे विच यू प्रोवाइडेड फॉर सोशियोलॉजी, आई मेड माई ओन नोट्स आउट ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि इफ आई एम हैविंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन माई सोशियोलॉजी स्कोर्स, आई ओ अ बिग क्रेडिट टू यू एक्चुअली फॉर दिस। यस। Thank you. And but a lot of credit goes to your perseverance, because I personally seen. I have mentored many people who have got rank in the previous year examination. First, they do not want to give the attempt itself. They delay. So you told, no, no, sir, I will give this attempt. And then not only that, you are giving your 100%. So we had chat also that now with respect to services, once you got the services, Indian Revenue Services, Customs, so what are the pros, cons? And then I
we had a chat and I told you are meant for Indian Administrative Services. You will get it. And I think we had a conversation just a week ago or 2-3 days ago, and then you said, "Sir, दोबारा ना देना पड़े." तो दोबारा देना नहीं पड़ेगा बिल्कुल ही अब done and dusted. Thank you very much, Yes. and thank you for inspiring so many students. और बहुत सारे लोग सुनेंगे और बहुत सारे लोग आपसे aspire होंगे. Just be one of the best Indian Administrative Services officer India has ever seen. Thank you, sir. I will try my best. बाकी आप तो हो ही हमेशा. Always, always. Take care of yourself. Thank you for your valuable time. Thank you, sir. Thank you.